Okay. Good evening. Good evening. यार तुम लोग को खुद बोलना चाहिए, मेरे बोलने के बाद। तो प्रेजेंटेशन तैयार है ना? कौन स्टार्ट कर रहा है? कौन स्टार्ट करेगा? अबे कृष्णा, मन किए हो ना? स्टार्ट करो। पूछना कौन स्टार्ट करेगा तो बोलो कि सर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दे दिए हैं, स्क्रीन शेयर करो। सर उस दिन मेरा नहीं हुआ था। आज कर देना। सबका? हाँ, सब लोग बंद कर दो। Good evening, everyone. I am here for FoxPro presentation work. I have to explain the topic sorting in FoxPro. What is sorting? Sorting is used to change the physical order of record in database tables. In Visual FoxPro, sorting creates a totally different table in the order you specify. Visual FoxPro can sort the table in ascending or descending order based on the field or a combination of fields. Why? Yes. Sir, क्या हुआ? Why sorting is required? The required data is easier to find when data is sorted. For records in arbitrary order, there cannot be any shorter way to search for the records, except examine every record of the table sequentially until the record is found or the end of the file is reached. Syntax for sorting. Sort to table name on. एक मिनट, ऑनलाइन जो लोग भी हैं बताएं, ऑडियो क्लियर आ रहा है ना? यस सर। यस सर। इको नहीं ना हो रहा है? ओवरलैपिंग इको ऐसा कुछ नहीं है? सर हल्का हल्का हो रहा है। हल्का हल्का हो रहा है। इसका माइक और कौन है बगल में? माइक ऑन किसका है? सब लोग म्यूट करो अपने आप को। सब म्यूट करो, अगल बगल जितने लोग हैं सब लोग म्यूट करो। कर लिए सब लोग म्यूट? ठीक है, अब चलो स्टार्ट करो। Syntax for sorting. Sort to table name on field name.
A for ascending order, D for descending order, C for ignore the case, character case. Use if the database file name is BCA445, then syntax will be use BCA445.dbf sort to name on name.dbf. For descending order, sort to name on name/d. Limitations of sorting. Data redundancy occurs since new tables are created that occupies more spaces in the hard disk. It is done manually, it is not automatic. It does not update automatically when a new code is added in database. Thank you. Contact clustering element. Wait. Contact clustering element. DSCT. DSCT. ऑनलाइन में किसका छूटा हुआ था? सर मेरा खुशबू। ठीक है खुशबू। शुरू करो। सर स्लाइड है? विजिबल है। ओके सर। Date and time function. My name is Khushbu Kumari. I am presenting the presentation of topic date and time function. Date function returns the current date in MMDD format. This function is used to print date on report. From Foxpro displays the date as set above in computer. Syntax date. एग्जाम्पल डेट आउटपुट डेट का ये फॉर्मेट होगा सर। फंक्शन इसे रिटर्न करेगा डेट। ईयर फंक्शन रिटर्न्स द न्यूमेरिक ईयर फ्रॉम द डेट expression. This function is always display the year with century. Hello. Yes, sir. This function always displays the year with century. From Foxpro displays the as set above in computer. Syntax year expression में date डालेंगे. Example year and date output 2008 and ये function return करेगा सर न्यूमेरिक में. Month function returns the numeric month from the date expression. Foxpro displays the month as set above in computer. सिंटेक्स होगा इसका सर मंथ और एक्सप्रेशन में डालेंगे डेट के साथ. एग्जांपल मंथ डेट
आउटपुट करेगा 1, इसका फंक्शन होगा न्यूमेरिक में ही। C month function returns the name of the month in character from the table expression. Foxtrot displays the month name as set above in the computer. Syntax C month expression में ही डेट डालेंगे सर। एग्जाम्पल C month date फंक्शन रिटर्न करेगा इसका कैरेक्टर में और आउटपुट इसका आएगा जो हम डालेंगे वो जनवरी। Day function returns the numeric day value from the date expression. Foxtrot displays the day as set in above in computer. Syntax day expression में date डालेंगे। Example day date आउटपुट इसका करेगा 21 जो डेट करेंट डेट होगा और फंक्शन रिटर्न करेगा न्यूमेरिक में। means day of week. This function returns the character date from the date expression. Foxtrot displays the day as set above in computer. Syntax होगा CDOW expression में date. Example होगा CDOW date. आउटपुट करेगा ये डेट मंडे, डे करेगा मंडे, फंक्शन रिटर्न करेगा इसका कैरेक्टर में फंक्शन रिटर्न होगा। DOW means day of week. This function returns the numeric day value from the date expression. Foxtrot displays the date as set above in computer. As set in computer 0 from Sunday and 6 from Saturday. 0 से स्टार्ट करेगा संडे होगा और 6 सैटरडे लास्ट होगा। इसका सिंटेक्स हुआ DOW एक्सप्रेशन में डेट। एग्जांपल DOW डेट आउटपुट करेगा 1, फंक्शन रिटर्न इसका न्यूमेरिक में होगा। Zero month function returns the date that is a specified number of months before or after a given day. Foxtrot displays the day as set above in the computer. इसका सिंटेक्स होगा सर zero month एग्जाम्पल zero month date 3 आउटपुट करेगा इसका जो डेट डालेंगे सो और फंक्शन रिटर्न करेगा डेट। DTOC means date to character. This function is used to change date to character format. ये कैरेक्टर फॉर्मेट से डेट को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। इसका सिंटेक्स होगा D2C एक्सप्रेशन डेट। एग्जांपल D1 इक्वल्स टू डेट, डिस्प्ले मेमो लाइक D1 आउटपुट D1 डेट आउटपुट करेगा जो डेट होगा सो D1 D2C डिस्प्लेज मेमो लाइक D1 आउटपुट और फंक्शन रिटर्न करेगा कैरेक्टर। C2D means character to date, मतलब यहाँ कैरेक्टर से डेट में होगा। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेंज कैरेक्टर टाइप डेट इन फॉर्मेट। C2D एक्सप्रेशन सी एग्जांपल D1 और जो भी डेट होगा सो डिस्प्ले करेगा मेमो लाइक 1 D1 आउटपुट D1 कैरेक्टर जो होगा सो D1 इक्वल्स टू C2D D1 डिस्प्लेस मेमो लाइक D1 आउटपुट D1 और डेट करेगा इस फंक्शन रिटर्न करेगा डेट। टाइम फंक्शन ऑलवेज current time as set in computer. This function returns the current system time in 24 hours. It enters in MMSS format, hour, minute और second के format में time return होगा। This function is used to print the time of print out in reports. Syntax was time example और आपको जो time function करेगा ये character में। Second function always returns the seconds that were passed between 12 p.m. to current time as set in computer. This function returns the value in floating point. Syntax होगा इसका second एग्जाम्पल भी सेकंड और आउटपुट जो होगा वो मतलब जितना सेकंड होगा वो और इसका फंक्शन रिटर्न करेगा न्यूमेरिक में। System. As far as system functions always returns the seconds that were passed between 12 p.m. to current time as set in computer. Returns the value in integer format. ये integer format में value को return करता है। इसका syntax होगा second example second output जो दिया रहेगा वो होगा 32128 and इसका function return करेगा numeric में। Thank you sir. ओके वेलकम। और कोई
पीछे कौन है? थोड़ा प्रेजेंटेशन। कंप्लीट तो हो जाना चाहिए था ना, जब हम तुमको बोले हुए। अच्छा ठीक है, प्रेजेंटेशन नहीं देना है मत दो, लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं उसके बारे में तुमसे पूछ सकते हैं ना? ठीक है, तुम बताओ शॉर्टिंग क्या होता है, शॉर्टिंग के बारे में बताओ। तुम बताओ, पॉकेट चाहते निकालो। बोलो, व्हाट इज शॉर्टिंग? शॉर्टिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, कमांड क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, एवरीथिंग। तुम्हारे बगल वाला, व्हाट इज शॉर्टिंग? तुम भी। फिर से बोलो। कौन डाटा? अरेंजिंग डेटा, हाँ ठीक है, बस एक लाइन। Sorting means when you record in particular way. और आगे? उधर देखो तो हम सवाल पलट देंगे, ठीक है? तुम उधर तक जा करो तो इंडेक्स पूछ देंगे तुमसे, इंडेक्स तक जा करोगे तो मल्टीपल डेटाबेस पूछ देंगे, कितना तंग करोगे? और मदद करने के लिए विपिन को भी सब याद होना चाहिए, उसको तो अपने नहीं याद रहता है। बताओ तुम खड़ा, सॉर्टिंग बताओ, सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग दोनों के बारे में बताओ। Sorting means arrangement of record in a particular way. Sorting, it creates another database file. बहुत बढ़िया। Syntax says sort to file name to on field name. फिर से Sort शॉर्ट। file name on field name. बहुत बढ़िया। ठीक है, इंडेक्स के बारे में बताओ थोड़ा सा। Indexing is another way of sorting. It does not create another database file. It creates a small index. तुम्हारे प्रेजेंटेशन में इंडेक्सिंग था क्या? है? नहीं, कभी तुमको याद है? अच्छी बात है, बढ़ जाओ। तुम खड़ा जा, तुम हमको बताओ कि डबल डायमेंशन मेमोरी वेरिएबल कैसे बनता है, उसका यूजेस क्या है, क्यों बनाते हैं? हाँ, डीम से, डिक्लेयर से, और एक कमांड और है, डायमेंशन। हाँ, एक वेरिएबल में एक से ज्यादा डेटा स्टोर करने के लिए। अच्छा, तो वो तो सिंगल डायमेंशन में भी करते थे, तो वाई डबल डायमेंशन?
तुम बताओ। सर डेटा में डेटा में जो गैदर करके स्टोर करते हो वो सर डबल डायमेंशन में स्टोर। डबल डायमेंशन मेमोरी वेरिएबल के बारे में बताओ कुछ। विष्णु तुम इंसर्ट करने के लिए एसक्यूएल क्वेरी बताओ। एसक्यूएल कमांड कैसे लिखेंगे इंसर्ट करने के लिए, रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, है? बताओ। हम ब्राउज विंडो खोल रहे हैं, ब्राउज विंडो खोल रहे हैं और चाहते हैं कि इसमें ब्राउज विंडो खुले, दिखे सब डेटा। जैसे पूछेगा वही बताएगा, अपने मन से सब हाँ हाँ नहीं करेगा, ठीक है। तो हम ब्राउज विंडो खोल रहे हैं और सारा का सारा डेटा जो दिख रहा है वो गलती से कोई डिलीट ना कर दे, एडिट ना कर दे, ऐसा चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? तुम लोग में से कोई? सेट एडिट ऑफ। अच्छा, ऐसा सेट कमांड है क्या? और कोई हाथ उठाना, खाली बोलना नहीं है। विपिन Browse no edit model. सिंपल, नो एडिट करना है तो ब्राउज के साथ नो एडिट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा कि जो खुलेगा उसमें एडिट नहीं कर सकते, बढ़ जाओ, ठीक है ना। मेमो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? सब एक एक नंबर का सवाल रहेगा। मेमो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? हाँ बेटा, जिसको आता है हैंड रेज करें, ऑनलाइन वाले भी। यस तरुण बताओ। डॉट डॉट fpt एफपीटी, अच्छा। अच्छा, जो विंडो हम लोग बना रहे थे अभी स्क्रीन डिजाइनिंग में, तो विंडो को हम लोग स्टोर कर रहे थे, बाद में रीस्टोर कर रहे थे, सेव कर रहे थे विंडो को, वो किस फाइल में सेव होता था? उसका एक्सटेंशन क्या था? उसका एक्सटेंशन विंडो, विंडो जो डिफाइन कर रहे थे हम लोग स्क्रीन डिजाइनिंग वाले में, विंडो पढ़े थे ना। तो उस विंडो को मान लो हम स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी वेरिएबल में या फाइल में, और बाद में उसको रिस्टोर करेंगे, ठीक। तो उसको किस फाइल में करते थे, मतलब फाइल का एक्सटेंशन क्या था उसका? उसका क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आ रहा? सिंपल तो बता रहे हैं तुमको, इंग्लिश में भी नहीं बोल रहे हैं। विंडो क्रिएट करते हैं ना, विंडो एट द रेट और दो कोऑर्डिनेट देते हैं कि डिफाइन विंडो, एक्टिवेट विंडो, ठीक है। तो सारा का सारा जितना विंडो बना रहे हैं सबको हम स्टोर करना चाहते हैं। नहीं, विंडो जो हम स्टोर करेंगे किसी फाइल में उसका एक्सटेंशन होगा विन, विंडो का विन, ठीक है। जो फाइल नेम तुम दोगे, मान लो हम देते हैं टेम्प, तो टेम्प डॉट विन नाम से बनेगा, WIN, ठीक है ना। मेमोरी वेरिएबल भी हम स्टोर कर सकते हैं फाइल में, जितना मेमोरी वेरिएबल बनाए हैं सारा डेटा के साथ, तो हम फाइल में सेव कर दें, बाद में रिस्टोर करके आगे काम करेंगे। नहीं सेव करेंगे तो मेरा सेशन खत्म होगा, तो ये सारा मेमोरी वेरिएबल सारा डेटा के साथ कल हमको फिर क्रिएट करना पड़ेगा। जितना हम स्कैटर किए हुए हैं सारा का सारा मेमोरी में है, सारा वेरिएबल विद ऑल द डेटा हमारा मेमोरी वेरिएबल में है, और सारे मेमोरी वेरिएबल को हम फाइल में रखना चाहते हैं ताकि कल फिर इस फाइल को रिस्टोर करें और काम करें।
तो मेमोरी वेरिएबल को जिस फाइल में स्टोर करेंगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा? मेमो किसका एक्सटेंशन होता है? किसी का एक्सटेंशन मेमो नहीं है ना। इसका एक्सटेंशन होगा मेमोरी का MEM होता है ना, फर्स्ट 3 कैरेक्टर MEM होगा। मेमो फील्ड है और वो FAT फाइल में सेव होता है, मेमो एक्सटेंशन नहीं है। हाँ, हम लोग चेंज कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो चेंज करें। चेंज करोगे तो क्या होगा, तुमको पूरा नाम देना पड़ेगा। मान लो हम देते हैं कि pushkar.raj, तो pushkar.raj नाम का फाइल बनेगा, तो सिर्फ पुष्कर देंगे तो pushkar.mem बना देगा। समझ में आ रही बात? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको फॉक्सट्रो में, और पूरे 3 साल में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे सबसे आसान फॉक्सट्रो है। अच्छा, मेरी इस बात से कौन कौन इत्तेफाक करता है, कौन कौन एग्री है? सबसे आसान है तुम्हारा फॉक्सट्रो। पढ़ोगे तब तो जानोगे, पढ़वे नहीं किए तुमको क्या मानोगे क्या भारी होता है और क्या हल्का होता है? सबसे आसान है, ठीक है, सबसे आसान है। और इसमें अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, नहीं सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो बाकी में क्या करिएगा समझ में आ सकता है। और फर्स्ट ईयर में ही हाल है तुम्हारा, तो बाकी आगे क्या करोगे? स्टूडेंट होता है कि फर्स्ट ईयर में बड़ा तेज होता है, खूब मेहनत करता है, खूब पढ़ता है, खूब जवाब देता है, और धीरे धीरे डिटोरिएट करता हुआ आगे बढ़ता है। उसको हैंड होल्डिंग करके, उसको पुश करके उसको बताया जाता है कि ठीक है तुम आगे बढ़ो। नहीं तुम तो यहीं पर टाटा फीस हो रहे हो यार, आगे कैसे कर बढ़ोगे? कैसे होगा? फॉक्सट्रो से जहां से जो सवाल हम करें उसका जवाब चाहिए, कैसे होगा? फिर से पढ़ाएं, फिर से शुरू से अंत तक फिर रिवीजन करें क्या हम लोग? मेरे रिवीजन कराने से होगा जब तक तुम लोग खुद से नहीं करोगे। हैं? खुद से करना पड़ेगा ऑब्वियसली। कितना देर पढ़ते हो घर पे जी? कितना देर पढ़ते हो? तुमसे पूछ रहे हैं, कितना देर पढ़ते हो? 2-3 घंटा? सच में? कल रात में पढ़े थे 2-3 घंटा? कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे? इंग्लिश पढ़े थे? इंग्लिश में क्या टेंस पढ़े थे, वॉइस पढ़े थे, नाउन प्रोनाउन डिजिट? हैं? तो 2 घंटा पढ़े क्या, ये बताओ ना। अच्छा, परसों क्या पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? और उसके पहले? बहुत मुश्किल है ऐसे। अगले क्लास में ऐसा नहीं दिखाओगे, मुंह लटका हुआ बेचारा जैसा कि नहीं सर नहीं आता हमको। कि सबसे अच्छा है कि पढ़ो मत, सर के क्लासों में मत जाओ, एब्सेंट हो जाओ। ये भी एक तरीका है नहीं? क्या जी, है ना? देख लेना पीछे वो तीनों लड़का और ये पीछे टोपी वाला और ये अगले क्लास में नहीं रहेगा, गारंटी। अच्छा, अगले क्लास में देखते हैं। तुम रहोगे अगले क्लास में? प्रेजेंटेशन बना के लाओगे? रिकॉर्डिंग ऑफ करके तुमसे कुछ बात करेंगे। चलो फिर, तुम्हारे दिक्कत है यार, मेरा क्या फायदा बताओ? इतना बार पढ़ाना, रिवीजन कराना, दोबारा रिवीजन कराना, तिबारा रिवीजन कराना, ये सब तुम्हारे लिए है ना? इसके लिए, तुम्हारे लिए ना। अगर तुम नहीं सीख पा रहे हो या तुम
इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो हम कैसे इंटरेस्ट लेंगे? सब तो तुम्हारे लिए। पूरे क्लास में 2-3 बच्चा है जो पढ़ता है, जो सीरियस है, बाकी सब वो सही। यही 444 और 452 जो बैच है उसको आके देखो, उसमें मतलब तुमको कुछ ही बच्चे हैं गिने चुने जिनसे पूछो तो जवाब नहीं देते हैं, सब पढ़ते वाला, सब मन लगा पढ़ता है। ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को कुछ और पढ़ाते हैं, तुम लोगों को कुछ और पढ़ाते हैं, है ना? स्लाइड भी सेम है, ऐसा नहीं कि 444 से 445 अलग अलग स्लाइड हम बनाए हैं। सेम पुष्कर राज, सेम स्लाइड, दोनों को पढ़ाते हैं। पढ़ोगे तो तुम्हारे काम आएगा, नहीं पढ़ोगे तब भी वो भी तुम्हारे ही काम आएगा, डोंट वरी, है ना? चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।